Welcome students. Today we will discuss verbs for our competitive as well as academic exams, and we have already discussed other parts of speeches such as nouns, pronouns and adjectives, and today it's the turn of verb. So let's start. Verb, we have already talked about verb that it is the core of the sentence. It is the central part of the sentence. The parts of speech, the word classes coming before verbs are called subjects, and those coming after verbs are called objects or complements. So, what does verb do in the sentence? Everybody knows the conventional जो definition है इसका, उसके बारे में सबको आइडिया है. वर्ब को हम लोग कैसे समझते हैं? इसमें any word describing any action, but the major question is कि क्या वर्ब केवल एक्शन के बारे में बताता है? If we have a sentence, he looks smart. He looks smart. वह स्मार्ट दिखता है. तो इज देयर एनी एक्शन? कोई एक्शन नहीं है. नो एक्शन. Then it is a state. So the complete definition of verb should be it describes the action or state of the subject. Subject introduces the sentence and verb describes what action is being carried out by the subject or in what state the subject is in. किस स्थिति में है सब्जेक्ट या क्या कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है. इसके बाद ये एक्शन और स्टेट की जब बात आ गई तो यहां पे एंड स्टेट, तो इस आधार पे यहीं से क्लियर है कि वर्ब शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक्शन वर्ब that are also called dynamic and static verbs. Static verbs. So we have already understood the concept of dynamic and static in adjective. Dynamic, most of the verbs are dynamic, it is obvious. Most of the verbs are dynamic क्योंकि अधिकांश जो verbs हैं वो action बताएंगे ही बताएंगे. And static verbs, the rest others are static. So what is the concept of static verbs? How would you understand which verb is static? सारे verbs जो केवल स्थिति बताते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और अमेंड कर लीजिए इस पार्ट को कि the verbs which do not involve physical action are called static verbs. Static verbs means no physical action is there. शरीर से कोई काम आप नहीं कर रहे हो. That is called static verb. So all the mental, psychological activities are called statics. Some verbs which involve some physical actions but they are not in your control, sensation related actions. So these are also called static verbs. And then finally
all the state verbs. Inactivity, the verbs showing inactivity are also called stative verbs. You can take certain list for your convenience. For example, you can say seen, know, understand, like, recognize, forget, remember, all these words are statives. Love, hate, all these things can also be, all these words can also be included. Obviously, sensation, we have 5 sensory organs, and accordingly we have 5 sensation verbs such as feel, taste, smell, hear, and see. We have these verbs: hear, own, have, with possessive meaning, possess, belong, resemble. These verbs are also stative verbs. Own means अपना होना, कुछ कोई अधिकार होना. Have, possess have the same meaning. Belong means आप कहीं से आते हैं, कहीं के होते हैं. Resemble किसी के जैसा होना, किसी से मिलता जुलता होना. Resemble, all these are showing your state, not any, they are not denoting any action, that's why they are stative verbs. These verbs, these are the commonly used stative verbs, you can say. And here you can add some other words, think. But what is the need of studying these verbs separately? क्या जरूरत है कि हम लोग डायनेमिक और स्टैटिक पे ही डिवीजन कर रहे हैं, जबकि ये कन्वेंशनल किसी बुक में नहीं इस पे कोई फोकस होता है. फिर भी एग्जाम्स में, इवन एकेडमिक एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, ये सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें अब इससे 1-2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेना आवश्यक था. तो आप ये जानिए इसके बारे में. इसका रूल बहुत इजी है, बहुत आसान है. इसको, इस लिस्ट को ध्यान में रखिए. एक कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि the verbs that do not involve physical action should not be used in continuous tenses. कंटिन्यूअस में इसका यूज नहीं होगा. प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में इसका यूज अवॉइड किया जाएगा. हम लोग एडजेक्टिव में भी ये कंसेप्ट ले चुके हैं, वर्ब पे भी वो लागू होता है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेन चीज वही है कि स्टेटिव जो होगा उसका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में यूज नहीं होगा. कैसे नहीं होगा ये देखिए अब. I am knowing. He is resembling his father. She is loving him. All these sentences are clumsy. They are not correct. They are not giving proper meaning because these verbs should not be used in continuous, progressive aspect. See,
इंस्टेड यू शुड से शी लव्स हिम। इसी में ये कंटिन्यूअस मीनिंग दे देता है। तो जब आपको स्टेटिक वर्ब यूज करना हो तो आप सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करेंगे या परफेक्ट में ही यूज करेंगे, तो आपको कंटिन्यूअस का मीनिंग मिल जाएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग मिल जाएगा। आई एम नोइंग कभी भी आपने नहीं सुना होगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनडीए या सीडीएस में किसी एग्जाम में आ चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना होगा या इंप्रूवमेंट के केस में भी दे सकता है। तो आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, इस टाइप के जो यूसेज हैं इसको अवॉइड करना चाहिए जनरली। तो एक रूल इससे रिलेटेड आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वर्ड्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल एक्शन शुड बी अवॉइडेड इन प्रोग्रेसिव टेंस। तो क्या यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है? सीधे सीधे एक लाइन में इसका रूल इतना स्ट्रेट होगा? तो नहीं, ये सेंटेंसेस गलत है। लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग a new house. I'm thinking of buying a new house. Yeah, he thinks that I will forget everything. अब इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों सही हैं। थिंक का यूज कंटिन्यूअस में भी हो जाता है। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू हाउस, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। ऑल दीज थिंग्स आर करेक्टली यूज्ड एंड दीज आर quite acceptable even in educated speech and even in examination English. So what is the difference? यहाँ पे आप सेंस से ही समझ में आएगा कि यहाँ पे डेलिबरेट थिंकिंग है। यू आर डेलिबरेटली trying to buying a new house. You are thinking about that. You are continuously thinking about that. So even if it is a stative verb and that action is being done deliberately by you, that can be used in progressive tense. यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप वो काम जानबूझ के डेलिबरेटली कर रहे हैं और स्टेटिव वर्ब भी है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ स्टेटिव वर्ब्स में ये चीज पॉसिबल है, जैसे थिंक के साथ पॉसिबल है, जैसे फील के साथ पॉसिबल है, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बड़ा फेमस पंच लाइन बन रहा है एक एडवर्टाइजमेंट का, आई एम लविंग इट। I am loving it. Loving being a stative verb should not be used here, but this is being used in that advertisement. So here the verb is used with different implication. यहाँ पे मीनिंग ही बदल के यूज किया जा रहा है। आई एम लविंग, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यू आर एंजॉयिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो आप लविंग यूज कर सकते हैं। तो ये एक जनरल रूल है कि स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अलावे भी चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार यूज होता है और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सही हो जाता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक हैबिट डेवलप करना होगा ये समझने के लिए कि कहाँ वो सही है और कहाँ गलत है। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्वाइट इजी है कि अगर स्टेटिव वर्ब्स है तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का नेचर अभी तक यही रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीप
अगर आप जाएंगे थोड़ा सा डीपर, आप इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो स्टेटिव वर्ब्स को प्रोग्रेसिव में यूज करने के लिए एक आपको हैबिट डेवलप करना होगा कि यहाँ पे यूज सही है और यहाँ पे यूज गलत है। जैसे लविंग का हो गया और थिंकिंग का हो गया। हम लोग ये भी सोचते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर, ये सेंटेंस कैसे सही है? आई फील बेटर क्यों नहीं? तो यहाँ पे एडवर्ब जो यूज कर दिया गया, तो ये इसको एम्फसाइज कर रहा है। तो इसको अगर हम रूल वाइज कोडिफाई करके समझने की कोशिश करें, तो 3 रूल्स में हम बांट सकते हैं। ये सेंटेंस भी सही है, आई फील बेटर भी सही है, आई एम फीलिंग बेटर भी सही है। फीलिंग बेटर इसलिए सही हो जा रहा है कि यहाँ पे एडवर्ब का यूज है। तो इसको रूल वाइज हम कोडिफाई करने की कोशिश करें, तो 3 रूल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट आप दिमाग में रखिए कि स्टेटिव वर्ब्स में जनरली नो कंटिन्यूअस, नो प्रोग्रेसिव टेंस, ये फर्स्ट रूल हो गया, तो जनरली नहीं करेंगे। दूसरा, क्यों नहीं करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इन प्रोग्रेसिव में give strange meaning, in progressive these verbs में give strange meaning। strange meaning कैसे देगा? जैसे उसको रिस्पॉन्स विदाउट स्टिमुलस बोला जाता है, कई बार आयरॉनिकल मीनिंग देता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा आई एम रिकग्नाइजिंग यू, आई एम रिकग्नाइजिंग यू, तो रिकग्नाइज शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव, लेकिन यहां पे यूज कर लिया गया, तो ये आयरॉनिकल मीनिंग देता है। तो जो आपने सेंस कन्वे करना चाहा वो नहीं हुआ। आई रिकग्नाइज यू का मतलब मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, लेकिन आई एम रिकग्नाइजिंग यू का मतलब हुआ कि थोड़ा आयरॉनिकल टिंज के साथ में बोल रहा हूं, थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रहा हूं कि मैं आपको खूब अच्छे से पहचानता हूं। तो ये चेंज हो जा रहा है मीनिंग, स्ट्रेंज मीनिंग हो जा रहा है, ये आयरॉनिकल थोड़ा टिंज लेके ये सेंस कन्वे करने लगेगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे आप इसको इंप्रूव कर देंगे, आई रिकग्नाइज यू बोलेंगे, आई एम रिकग्नाइजिंग यू के बदले। तीसरी चीज, तीसरा जो रूल होगा इसका, कि कुछ वर्ब्स अगर डेलिबरेट एक्शन शो करता है तो उसको तो यूज कर ही सकते हैं, जैसे थिंकिंग वगैरह में। इसके अलावा कुछ स्टेटिव वर्ब्स को एडवर्ब्स के साथ अगर एम्फसाइज करता है स्टेटिव्स को एडवर्ब, तो क्या करता है, नॉर्मल मीनिंग, उसका जो स्ट्रेंज मीनिंग आते रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे आई एम फीलिंग बेटर, तो बेटर वहां पे, यहां पे आप इसको सेंटेंस को इस एग्जांपल से समझिए, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई फील कोल्ड होना चाहिए, आई एम फीलिंग कोल्ड, यहां पे कोई एडवर्ब नहीं है, तो आई फील कोल्ड बेटर है। लेकिन आई एम फीलिंग बेटर, वेल के बदले बेटर हमने यूज किया, तो ये एडवर्ब जो है थोड़ा एम्फसाइज कर दे रहा है इसको। नाउ यहां पर अगर आप लगा देते हैं तो और बेटर होता है, ये भी एक एडवर्ब हो जाता है। अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो यहां पे ये सेंटेंस नॉर्मल मीनिंग देने लगता है। आई एम फीलिंग कोल्ड, यहां पे सेंस देता है थोड़ा सा अलग, आई फील कोल्ड ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड तो तबीयत खराब है, वहां पे ठंड नहीं है, रिस्पॉन्स विदाउट स्टिमुलस मिलने लगता है, ठंड एक्चुअल में है नहीं और मुझे लग रही है, ये सेंस देने लगता है सेंटेंस। इसलिए
इसको अवॉइड किया जाता है। और अगर आप प्रोग्रेसिव में यूज करते हैं तो एक एडवर्ब यूज करिए ताकि वो वर्ब एम्फेसाइज हो और उसका नॉर्मल मीनिंग फिर आने लगे। तो ये बेसिक 3 रूल्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेटिव वर्ब्स में ही प्रॉब्लम होती है, डायनेमिक तो हम लोग अलग से जो भी कॉमन रूल होता है वर्ब्स का वो सब डायनेमिक पे लागू होगा और आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसको। यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो कैसा है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में, उसको भी देख लें एक बार। सपोज I have not you for many days। यहां पे फिलर है, आपको ऑप्शन मिला हैव सीन बीन सीइंग सीइंग वॉचिंग। इस टाइप से कुछ ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे बीइंग सीइंग जो है ये ऑब्वियसली फॉर मेनी डेज है तो कोई भी जाएगा। अगर दूसरा वर्ब होता तो आई हैव नॉट बीन सीइंग यू, इस तरीके से सेंटेंस बनता। लेकिन चूंकि सी यहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स है तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये ऑप्शन देने में एडवांस रैंडमली थोड़ा सा ये ऑप्शन देने में थोड़ा कटा हो गया है। अगर अदरवाइज सेंटेंस को दूसरे तरीके से अरेंज किया जाता एग्जाम में ये इस तरीके से ऑप्शन देगा, या आपको पूरा पूरा ये सेंटेंस दे देगा आई हैव नॉट बीन सीइंग यू फॉर मेनी डेज इस तरीके से, और आपको उसमें एरर छांटना होगा, एरर डिटेक्ट करना होगा। तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रहेगा कि स्टेटिव वर्ब है तो आप डिटेक्ट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। स्टेटिव वर्ब्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए आप, कोई भी सोर्स हो आपका, या अगर कोई परेशानी हो तो आप हमसे भी टच कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए कि ये चीज समझ में नहीं आया। 3 रूल्स हैं, तीनों को आप ध्यान में रखिएगा तो परेशानी नहीं होगी। वर्ब्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए स्टडी को।